Dear students, we know that tax can affect the supply by the producer, but we should also understand that tax can also affect the producer surplus and how integration can trace this effect. This is what we are going to see in this lecture. So we are considering a numerical example in which we have this cost function, and it is a cubic function because the power of the independent variable, the output, is 3. And it's the production process of computers. And they say that if the producer has planned to produce 12 computers to meet the market demand, what is his total producer surplus if the market price is this? So the good thing in this situation is that we are given a certain point with both of the values, that is the value of the Q and the value of the variable P. And we can use this ordered pair to analyze to get to the producer surplus. But before we go there, we must focus that we are not given the supply function. Rather, we are given the cost function. And here we can use this concept where we use the marginal cost function as the supply function. So in order to get the marginal cost function so that we get the supply function, we need to differentiate this given total cost function. And the same will be done when we go ahead. And this is the main requirement of the process, that after calculating the original producer surplus, we will recalculate the producer surplus in the face of imposition of tax. And that is mentioned here, that situation that the production will decline, as we discussed in the beginning, that the production that gets discouraged and the supply also decreases. The producer surplus at Q is equal to 12 is to be calculated, and the market price is this. Okay, so this is the point that we can use. Now we are coming back to the first thing that we need to do, and that is to find the marginal cost function that we can equate to the supply function. So this is the original cost function that was given. Taking its derivative with respect to Q will enable us to have the marginal cost function, जिसे हम सप्लाई फंक्शन के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं एज पर आवर माइक्रो इकोनॉमिक थियरी. ये है वो सारा प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे थे, और इस मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को हमने अब सप्लाई फंक्शन के इक्वल एज्यूम किया है एज पर द गिवन थियरी, एंड वी आर नाउ एबल टू प्लॉट इट. जो आप देख रहे हैं, इट्स अ पॉजिटिवली स्लोप लाइन एज द सप्लाई कर्व यूजुअली हैज़, और इसके अंदर हमने लेबल कर लिया मुख्तलिफ पॉइंट्स को, मुख्तलिफ रीजन्स को, और ये है एरिया अंडर द कर्व जिसे हम हाईलाइट कर रहे हैं, और ये है हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस की ट्राइंगल नुमा शेप, और ये है एक्चुअल रेवेन्यू जो कि ये पूरा रेक्टेंगल है. सो प्रोड्यूसर सरप्लस की डायग्राम हम माइक्रो इकोनॉमिक थियरी में पढ़ चुके हैं, इसको यहाँ पर रीड्रॉ किया हुआ है एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन. क्यों हमारे पास 12 था, और अकॉर्डिंगली प्राइस की भी वैल्यू हमारी पिछली स्लाइड्स में मैंशनड है. नाउ हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करने जा रहे हैं. आपको याद होगा इन द डायग्राम कि हमें चाहिए ये ट्रायंगल जो कि प्रोड्यूसर सरप्लस को शो करती है, और जो पूरी रेक्टेंगल में से हम जब ट्रैपजॉइड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ट्रायंगल बच जाएगी. लेट मी शो यू दैट वन मोर टाइम. ये है पूरी रेक्टेंगल जिसमें से हम ये ट्रैपजॉइड अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये ट्रायंगल बच जाएगी, जो कि हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस की निशानदेही कर रही है. सो ये था वो फॉर्मूला जो कि हमने डायग्राम से लॉजिकली एक्सट्रैक्ट किया, और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. आपको पता है कि ये है रेक्टेंगुलर एरिया जिसके लिए लेंथ इनटू विड्थ का हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, और यह है ट्रैपजॉइड जिसके लिए हम इंटीग्रेशन का डेफिनेट वर्जन यूज़ करेंगे जिसमें एक लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट होगी. आफ्टर दिस हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया जहाँ जहाँ ये सब्सटीट्यूट होती हैं. सप्लाई फंक्शन जो कि मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन के बराबर था उसकी वैल्यू लगाई, और इसके आगे जो स्टेप्स हैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि आप इन्हें कर सकते हैं, बिकॉज ये है सिंपल मल्टीप्लिकेशन और ये है इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, और ये हैं उनकी अपर और लोअर लिमिट्स. उसके बाद जो चीज़ हम देख रहे हैं वो है कि इस वैल्यू को रिटेन किया गया है एज इट इज़, और यहाँ पर हम कर रहे हैं अलहदा अलहदा से एक्सपैंड और सब्सटीट्यूशन लोअर और अपर लिमिट्स को,
और उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन है जो कि हमें ये वैल्यूज़ देगी, और इन चारों वैल्यूज़ को सॉल्व करके हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, जिसे फाइनली हम वन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज़ 2040. दैट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल दैट वी वर लुकिंग फॉर, एंड दैट वाज द प्रोड्यूसर सरप्लस. बट द स्टोरी डजंट एंड हेयर, बिकॉज दिस इज़ द मेन थिंग दैट वी आर गेटिंग टू. ये वो प्रोड्यूसर सरप्लस है जिसकी हमें तलाश थी. लेकिन जो हमारी गिवन सिचुएशन है वो ये है कि अगर टैक्स लगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस में लॉस कितना होगा. तो अगर हम ये डायग्राम पे फोकस करें तो हमें पता चल रहा है कि टैक्स लगने से क्वांटिटी सप्लाइड डिस्करेज होकर 9 पे आ गई है. ये हमें गिवन डेटा में बताया गया था, और उससे हम देख रहे हैं कि ये रीजन अब डिवाइड हो गया, और जो प्रोड्यूसर सरप्लस इस ट्राइंगल में छुपा हुआ था, अब उसमें से ये पोर्शन जो है अब वो माइनस हो गया है, बिकॉज ये सप्लाई अब वॉइड है और ये सप्लाई अब मैटर करती है. तो इस ट्राइंगल को हम कह सकते हैं लॉस, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हम निकाल सकते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस, और ये चीज़ हम आगे करने चलें. सो पोस्ट टैक्स डायग्राम का नाम दिया. पोस्ट टैक्स से मतलब ये है कि टैक्स लगने के बाद की डायग्राम, और उसके अंदर ये सारी डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. लेकिन ये केस ज़्यादा एक्सप्लेन होगा विद द हेल्प ऑफ दीज नोटेशंस. वो ये कहना चाह रहा है कि अब जो रेवेन्यू है वो ये है कि हम रेवेन्यू को उसके फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, और वो तरीकाकार है ये. अब आप इसके वर्टिसेस को नोट कर लें, ए, Q1, Q स्टैरिस, E, और हम यहाँ पर देखते हैं A, Q1, Q स्टैरिस और E. सो ये इस रेक्टेंगल की बात कर रहा है जो कि अब नई रेक्टेंगल है, जो कि डिक्रीज़ को या जो सेपरेट कर दी गई अमाउंट उसकी बात कर रहा है. सो इसमें से अगर मैं ये जो लाइट शेडेड एरिया है इसको एक्सट्रैक्ट कर दूं, ये जो नीचे है कर्व के, तो मेरे पास ये ट्राइंगल बच जाएगी. और आप खुद भी सोच सकते हैं कि ये जो लाइट शेडेड एरिया जिसमें एक सिंगल लाइन मूव कर रही है, ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन से हासिल हो सकती है, जिसमें लोअर लिमिट को मैं 9 रख सकता हूँ और अपर लिमिट को मैं 12 रख सकता हूँ. सो अब मैं इस छोटे से एरिया पे डेफिनेट इंटीग्रेशन अप्लाई करके वो हल्का शेडेड एरिया निकाल सकता हूँ, और पूरी रेक्टेंगल जो है वर्टिकल, उसके लिए मैं लेंथ इंटू विड्थ अप्लाई कर सकता हूँ. माइनस करने पर मेरे पास ट्राइंगल बच जाएगी, जो कि मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि मैंने निकालना है प्रोड्यूसर सरप्लस के लॉस को, जो कि अब ज़ाया हो चुका है. तो ट्रैपजॉइड जो है उसका तरीकाकार मैं आपको डायग्राम से समझा चुका हूँ, और अनवांटेड एरिया से हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसे निकाल कर ट्राइंगल को हम उसका एरिया निकाल लें. तो उसकी जो लोअर अपर लिमिट्स मैंने आपको बताई थी वो थी 9 और 12, बिकॉज उसका स्टार्टिंग पॉइंट 9 था और एंडिंग 12, और उसको हम अप्लाई करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के साथ, और ये है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट की एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू. इसे हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो डिफरेंस होगा उस वर्टिकल रेक्टेंगल का और उस ट्रैपजॉइड का, वो हमें वो ट्राइंगल का एरिया देगा, जो कि बेसिकली शो कर रही है लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस को. ये था वो फॉर्मूला जिसे हमने डेवलप किया. आगे इसकी कैलकुलेशन है जो बहुत आसान है अब हमारे लिए करना. लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू दिस रेक्टेंगल minus this trapezoid. Let me highlight that triangle, rectangle and trapezoid. ये देख के आपको सहूलत होगी याद करने में. बाकी आप इसे हल कर सकते हैं. And now you are capable of doing this DIY. इसकी सिंपल इंटीग्रेशन की है विद द लोअर एंड अपर लिमिट्स. फिर यहाँ पर हमने लिमिट्स को अप्लाई कर दिया है, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को, और उसके बाद सॉल्व किया है जो अलजबरा आप हमेशा से करते आए हैं. फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 564. सो ये जो आंसर है बेसिकली ये लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस को शो करता है. और उसके लिए व्हाट वी आर डूइंग हियर इज टू मेक अ चार्ट, राइट, एंड दैट ग्राफ बेसिकली इज गोइंग टू टेल यू कि ये डिक्लाइन हुआ था ये ओवरऑल एरिया, और ये लॉस था जिसको हमने अब इवेलुएट कर लिया, और हमें पता चला कि दिस इज द एरिया ऑफ द लॉस ऑफ द प्रोड्यूसर सरप्लस. सो यूजिंग द डेफिनेट integrals we have found not just the producer surplus, rather the loss in producer surplus due to the imposition of tax. Thank you.